Okay, good morning, students. And today we will discuss the output programs and questions linked with the write a program in the case of list and string. So look at here. In 2018 question paper, there was a one question regarding find the output. This question is from string. तो मोस्टली पेपर में स्ट्रिंग के क्वेश्चन आउटपुट क्वेश्चन होता ही है. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. In your working note, first of all, write the indexing. सबसे पहले आपने इंडेक्सिंग लिखनी है. आपने now look at here, string 1 और एक string 2 given है. String 1 exam 2018, but in string 2 it is an empty string. You are applying loop. लूप में आपने क्या कर रहे हो, while आई की वैल्यू है 0, आई लेस देन स्ट्रिंग. तो ये लेस देन स्ट्रिंग है, मतलब जब तक आप स्ट्रिंग का एंड नहीं आता. तो लुक एट हियर, स्ट्रिंग लेंथ इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 7 तक जाएगा. तो हमारे पास लास्ट वैल्यू इज इंडेक्सिंग इज 7. इन केस, अगर इन केस वैल्यू इज फ्रॉम ए टू एम, तो आपने क्या करना है, स्ट्रिंग 2 में ऐड करना है स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग का नेक्स्ट करेक्टर ऐड कर देना है. स्ट्रिंग 2 में तो पहले एम्प्टी होगा, इट मीन नेक्स्ट करेक्टर. इन केस आपके पास नंबर, अगर आपके पास जो करेक्टर है वो 0 to 9 है, इन दैट केस आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग का प्रीवियस करेक्टर वहां पे टाइप करना है. और एल्स के केस में आपने यहाँ पे लगाना है स्टार. यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, ये एल्स के बिल्कुल सामने आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था. सो लुक एट हियर, फर्स्ट करेक्टर इज e. नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट कंडीशन इज a to m. yes, कंडीशन सेटिस्फाई. तो स्ट्रिंग 2 में आपने ऐड कर दिया, लुक एट हियर, स्ट्रिंग का नेक्स्ट लेटर, क्योंकि हम वी आर यूजिंग आई प्लस 1. so next letter is x, so here will be x. next letter is x, पर ये this is not in the range a to m, this is not in the range 0 to 9, so this is here we will put star. next is a, so this is in the range of a to m, so we will insert the next character. so next character is m. now m, again this is in the range of first first condition, so we take next character. so next character is 2. now we come to 2, this is not in first range, this is in second range, so we will take the previous character. look at here, I minus 1, previous character. now previous character of str1 is m, so here is m. now 0, so again this is in the range of second one, तो हमने previous letter लेना है, previous letter is 2, then 1, previous letter is 0, then 8, previous letter is 1. so this is the answer. Amrinder is okay?
Yes, sir. So next question is, Yes, sir. okay beta. Okay students, look at here. Question is, write the definition of a method or function double odd num to add and display twice of odd value from the list of num. तो जितने भी आपके पास लिस्ट में वैल्यूज हैं उसका आपने सम करना है हर एक वैल्यू को ट्वाइस करके, डबल करके. सो लुक एट हियर. फंक्शन डेफ double, this is given in the question, double odd, and there is one parameter that is nums. So nums is a list. So look at here, we take one variable sum, initial value is 0, then for I in range, आप उसको रेंज के बिना भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब आई में फर्स्ट फर्स्ट नंबर आ जाएगा. नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू टू. तो फिगर आपके पास जो भी नंबर होगा वो डबल हो जाएगा और डबल होके वो सम में ऐड हो जाएगा. एंड आफ्टर द लूप प्रिंट ट्वाइस ऑफ odd sum. Here we will display the value of sum. This is the answer. Divya, it is clear. Yes, sir. In this case आप range भी यूज कर सकते हो. Range means you will have to use indexing. अगर मैं यहाँ पे range यूज करता, look at here, in a range in that case ऐसे आना था length of sum, और यहाँ पे आना था, आई नहीं आना था, यहाँ पे आना था nums स्क्वायर ब्रैकेट. तो, तो हमारे पास क्योंकि आई में इंडेक्सिंग वैल्यू आनी थी, तो नम जीरो, नम्स वन, नम टू, लाइक दिस, तो हमें ऐसे यूज करना पड़ना था. तो दिस इज योर चॉइस. You can use here range. When you will use the range, it means you are using the indexing. Next is, look at here, write the definition of a method or function find out name comma his name to search the his name string from a list and display the position. So look at here, if the value of his name is Tarun, तो तरुण कौन सी लोकेशन के ऊपर है, 0 1 2, तो वो सर्च करेगा. तो लुक एट हियर, def, this is for function find out. We receive two parameters, names, names is a list of names, his name, this is the word which we want to search. तो अगेन या तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर लो, और इफ यू वांट टू यूज इंडेक्सिंग यू विल हैव टू यूज रेंज. अगर आपने नहीं करनी तो लुक एट हियर, for
आई इन नेम्स। तो अब इसमें क्या होगा, आई में हर एक बार नेम आएगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। फर्स्ट नेम इज अरुण, देन राज, देन तरुण, देन कनिका। Now look at here. If I double equal to his name is Tarun. So if it is equivalent, in that case, we will display the position. So look at here, print his name is Tarun, then comma, at, then comma, not indexing. So here should be for indexing, I will have to use the range. So otherwise, it is very difficult to find out, क्योंकि यहाँ पे 2 is a range, the index. So index करने के लिए हमें use करना पड़ेगा range length of num, then here names, if both match, in that case at I. So it will display Tarun at I. I means 2. So this is the program. Gurbani, any doubt in this? No, sir. Okay, beta. Excuse me, sir. Yes, बच्चे. सर फिर से समझा दो वो वाला. लो, look at here, beta. ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास हमने पैरामीटर रिसीव किया नेम्स. नेम्स इज ए लिस्ट ऑफ नेम्स, लाइक लुक एट हियर अरुण, राज, तरुण, कनिका. और दूसरा वर्ड हमने हिज नेम एक पैरामीटर रिसीव किया, दैट इज तरुण. यहाँ पे तरुण उन्होंने कहा कि तरुण, अगर हम एग्जांपल दी हुई फिल करें तो हमने यूज किया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नेम्स. तो वो 0 से लेके यहाँ पे कितने नेम्स हैं, 4 नेम्स हैं. तो लूप 3 तक जाएगा, 0 1 2 3. और हर बार इन एवरी टाइम वी विल चेक इफ नेम्स आई मीन्स 0. इफ नेम 0 इज इक्वल टू हिज तरुण, नो. देन नेम 2 इज इक्वल टू, नेम 1 इज इक्वल टू तरुण, नो. नेम 2 इज इक्वल टू तरुण, यस. जब कंडीशन मैच हो गई, इन दैट केस हमने प्रिंट करवाया हिज नेम. हिज नेम में क्या आ जाएगा, तरुण. ठीक है. और एट में क्या आ जाएगा, एज इट इज एट. और आई की जो वैल्यू आ जाएगी इंडेक्सिंग वैल्यू. तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू ऑफ तरुण इज 0 1 2. तो वहां पे 2 डिस्प्ले होगा. दिव्या, इट्स क्लियर? यस सर. ओके बच्चे. अमरिंदर, यस सर. वो आपको क्लियर है बेटा इसका, जो पुश एंड पॉप वाला? हाँ जी सर. अगर कहते तो वो भी प्रोग्राम बना दूं एक बार आपको, सर देख लो आपको जैसा ठीक लगे. क्योंकि पेपर में जो सैंपल पेपर है उसमें एक चॉइस आई हुई है पॉप की और पुश की. पॉप एंड पुश की चॉइस दी हुई है. तो मैं ऐसे करता हूँ, यही क्वेश्चन फिर से एक बार आपको करवाता हूँ. क्योंकि लुक एट हियर, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपने एक, यू विल हैव टू क्रिएट वन फंक्शन डू पुश कस्टमर. कस्टमर में क्या है, इट इज ए लिस्ट ऑफ कस्टमर्स. और एक है पॉप, डू पॉप, ये फंक्शन का नेम है. इसमें भी क्या है, कस्टमर इज ए लिस्ट ऑफ कस्टमर. तो आपने क्या करना है, एक ऐड करना है एक न्यू रिकॉर्ड. और अगर हम डिलीट करें तो कैसे होगा, तो लुक एट हियर. तो नेम ऑफ फंक्शन इज डू पुश
customer तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूजर से हम एक नेम ले लेते हैं, एंटर न्यू कस्टमर, after that we will add there is a one variable that is called top, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, टॉप में टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, ठीक है, एंड आफ्टर दैट नेम कस्टमर, कस्टमर इज ए लिस्ट, उसमें डाटा ऐड करने के लिए अपेंड, और क्या अपेंड करना है आपने, यू वांट टू अपेंड द नेम। तो आपने इस तरीके से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि लिस्ट में कुछ भी ऐड करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू ऐड होती है। नाउ लुक एट हियर, आप यहाँ पे टॉप के बिना भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं टॉप ना भी यूज करूं इवन देन इट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, आप टॉप के साथ भी कर सकते हो, ये टॉप के बिना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट आफ्टर एडिशन, आपने कस्टमर को फिर से डिस्प्ले करा देना है, लिस्ट को डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। और अगर ये पुश वाला होता, इन दैट केस डेफ डू सॉरी पॉप, पॉप मीन्स डिलीशन, तो इफ लेंथ ऑफ कस्टमर इज ऑलरेडी जीरो, जीरो मीन्स इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, प्रिंट underflow, underflow indicate that we can't delete the element, else अब आपने क्या करना है कि जो लेंथ है आपकी कस्टमर डॉट पॉप, तो पॉप के ब्रैकेट में हमें इंडेक्स चाहिए जिसको आपने डिलीट करना है, तो लास्ट का जो लास्ट होगा वो इसका इंडेक्स होगा, लेंथ कस्टमर, कस्टमर की जितनी लेंथ है उसमें से -1 कर दिया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है वो, क्या उसको आपने डिलीट कर देना, उसको पॉप कर देना, और आफ्टर दैट आपने प्रिंट कराना है आफ्टर डिलीशन। चहल, इट इज क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay beta, now look at here, another question from list, आपके अपने क्या करना है, एक पाइथन का फंक्शन बनाना है स्विच ओवर, उसमें आपको एक वैल्यू रिसीव होगी टू स्वैप द इवन एंड ओड पोजीशन ऑफ द वैल्यूज इन द लिस्ट। तो आपने लिस्ट में जो इवन वैल्यूज और ओड वैल्यू आपस में आपने क्या करना है, इवन और ओड पोजीशन को 0 को 1 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ इंडेक्सिंग में जो वैल्यूज है आपने स्वैप करनी है। लुक एट हियर, 25 और 17 swap, 19 and 13 swap, 12 and 15 swap. So look at here. So we will take here def
for definition for a function, switch over val. Here val is a list. Now, so you can use indexing or without indexing. So I'm using indexing here. For I in range, ठीक है, length of val. तो val उसकी लिस्ट की लेंथ सपोज इट इज हियर 6, तो लूप चलेगा 5 तक, 0 to 5. नाउ val I comma val I plus 1. I plus 1 means next element is equal to val I plus 1 and val I. तो इससे क्या होगा, सो val 0 में val 1 की वैल्यू आ जाएगी और val 1 में val 0 की वैल्यू आ जाएगी, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा. एंड आफ्टर लूप प्रिंट आफ्टर swapping. Now you will display list. So this is the answer. Yatin, it is clear? Yatin? Amarinder? Yes, sir. Okay, beta. Next is okay, बेटा, एक फंक्शन बनाने के लिए कह रहे हैं आपको काउंट. उसमें स्टार्टिंग वैल्यू आपने देनी है, एंडिंग वैल्यू देनी है, और स्टेप में 6. पोस्ट स्टार्टिंग वैल्यू इज 14, एंडिंग वैल्यू इज 35. तो आपने क्या करना, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 6 32. मींस उस रेंज के बीच में यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यू, और जो आप स्टेप दोगे उससे वैल्यू इंक्रीमेंटेड हो जाएगी. So look at here, I'm making this program. Start, end, step. So for I in range, start, end, or step. So look at here. Here start is suppose 14, end is 35, तो लूप 34 तक चलेगा, और स्टेप की वैल्यू है जितने आपने ऐड करने हैं. So otherwise by default is 1. So here I am taking step. Here step value step is 6. It means every time 6 will be added. And then print I. The word is okay. Yes, sir. In exam, in your sample paper, there is no any question from postfix. Otherwise, I have already discussed the postfix. So CBSE ignored this portion. So there will be no any question regarding postfix in your PT3 exam or pre-board exam. So next is
एक क्वेश्चन होता है कि राइट, मैं आई एम राइटिंग दिस प्रोग्राम अगेन, नेक्स्ट लुक एट हियर, राइट ए मेथड स्लैश function reverse सो हमने एक फंक्शन बनाना है और मेथड बनाना है इन विच वी विल रिवर्स द लिस्ट एंड वी विल नेम ऑफ द फंक्शन इज rev and here we will receive one parameter that is list. Look at here. So it will start from zero location, zero indexing, and will be executed up to the half. Because if we will continue up to the end of the list, it means swapping after swapping. J is the last element. So in this way, or every time now we will decrease the value of J. No need to decrease the value of increase the value of I because it is automatically added. So after swapping, new list is Divya, it's okay. Yes, sir. And next is तो आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने एक लिस्ट की सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड करना है जो डिविजिबल बाय 5 है. सपोज लिस्ट इज here 1 2 3. Three values are divisible by 5. So 5 plus 10 plus 15. So answer must be 30. So look at here. So I receive one parameter that is a list. I declare one variable sum is equal to 0 for I in range. Take here length of list. If
list I percentage 5 0. This is modulus. If that number is divisible by 5, it's if it is okay, condition satisfied. In that case, sum is equal to sum plus list I, and after the loop we will display this is the program. So next is we will solve the another question from last year paper 2017 paper. Look at here, there is one output program. Find and write the output of the following Python code. So first of all, in working node, write down the indexing. So zero location, 1, 2, 3. We declare one variable CNT total. These are two variables. Now for C in, then list is given here. So in C first will be 7, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, then 6. अब हमने क्या किया, लूप के अंदर t is equal to text CNT. अब text text CNT, यहाँ पे हमारे पास जो CNT की वैल्यू है that is 3. Look at here, 3. So थर्ड लोकेशन में हमारे पास 40 है. So t में आ गया 40. उसके बाद हमने टोटल में t को 40 को कन्वर्ट किया फ्लोट में, क्योंकि वो किस में था, स्ट्रिंग में था, डबल कोट्स में था. तो 40 कन्वर्टेड इनटू द फ्लोट और उसमें हमने c ऐड कर दिया. c क्या था, 7. तो 40 प्लस 7 तो हमारे पास हो गया 47. तो 47 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ, 47. लुक एट हियर, 47. अब हमने क्या किया, CNT में डिक्रीमेंट लगा दिया, CNT हो गया 2. C में नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 5. हमने टेक्स्ट CNT में 2 था, सो सेकंड लोकेशन के ऊपर वैल्यू है 30. तो 30 को t में आएगा 30. टोटल में हमने 30 को फ्लोट में कन्वर्ट किया, देन प्लस c, और हमारे पास जो c की वैल्यू थी 5. सो 30 प्लस 5 इट डिस्प्ले 35 ऑन द स्क्रीन. और उसके बाद CNT की वैल्यू हो गई here is 1. और C की फिर से लूप चला, इन C इट इज 4. अब हमारे पास T टेक्स्ट 1 में वैल्यू है 50. 50 फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और उसमें हमने C ऐड कर दिया. C की वैल्यू क्या थी, 4. तो 50 प्लस 4, 54 डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. आफ्टर दैट आपके पास CNT की वैल्यू हो गई 0 और C की वैल्यू हो गई 6. तो टेक्स्ट 0 में वैल्यू है 20, T में 20 इज कन्वर्टिंग टू फ्लोट और उसमें हमने C ऐड कर दिया. तो 20 प्लस 6, 26 26 डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन.
So if you have any doubt, raise your hands. Otherwise, best of luck, beta, for your PT3 exam, pre-board exams. Do well in the exams. Even if you have any doubt in the coming days, please discuss with me. Okay, students, I am closing the meeting. Take care. Bye, beta.